Hello students, I welcome you all. This is chapter 5 from class 8th named Coal and Petroleum. Coal in Hindi, koila, petroleum, you know better, generally petrol. So in this chapter we will discuss about coal and petroleum and what is the uses of coal and petroleum in our daily life and what are the methods to get these two sources of energy. So without delay any moment, let's start our chapter 5. The name is coal and petroleum. Before starting the chapter, let's see what are the points in this chapter we will discuss. The first one is renewable sources of energy. Renewable sources of energy. In renewable in Hindi नवीनीकरण मीन्स जिसको हम पुनः दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, विच कैन बी रिन्यू. आप रिन्यू आता है ना, रिन्यू मीन्स दोबारा से बना देना, तो जिसकी हम मरम्मत करके या हम एक आसान लैंग्वेज में कहें विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. सो सच सोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. द सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल दैट इज जस्ट एंटोनियम्स ऑफ द रिन्यूएबल. So ऐसे sources which cannot be obtained after ending. अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो किसी भी मेथड के थ्रू हम उनको दोबारा से हासिल नहीं कर सकते. We can't be obtained again by any method if the sources are end. So such sources are known as non-renewable sources of energy. The next point, fossil fuel, then coal, petroleum and liquefied petroleum gas, and the last point which we will discuss in this chapter, that is natural gas. So these are some points which we will easily try to learn in this chapter. I hope you understand what is the main points of this chapter. Okay, so let's move further. One of the most important needs of living organism. Living organism means, you know better, just like humans, animals, birds, flying. No? Means everything which respire, which take food, which reproduce their young ones, जो अपनी तरह के बच्चे देते हैं, खाना खाते हैं, and they have definite lifetime या definite life, यानी definite एक वक्त के बाद एक उनका वक्त मुकर्रर होता है, उससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी नहीं हो सकती. हो सकता है just like humans, जो एवरेज लाइफ ऑफ द ह्यूमंस इज 70 और कोई मैक्सिमम 100-120 तक जी जाता है, बट उससे ज़्यादा मुमकिन नहीं होता है. तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर, विच विल रिप्रोड्यूस देयर बेबीज, ना, is energy. Yeah, so one of the most important needs of living organism is energy. यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एनर्जी है. Energy's various forms is needed by us for survival. यानी कि एनर्जी की ज़रूरत हमें अलग अलग फॉर्म्स की, एनर्जी जो होती है अलग अलग फॉर्म्स की होती है, एंड इट इज़ नीडेड फॉर अस. हमें इसकी ज़रूरत होती है. क्यों होती है? फॉर आवर सर्वाइवल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. We are taking the foods. Why? Because the food, when it decompose into glucose, it provides us energy. When our body get energy, so our body are able to do different types of activity like racing, reading, physical activities, mental activities.
Without energy, can we survive? I hope no. Let's take one more example. Sun is the biggest source of energy. When the sun rays absorbed by the plant's leaves, so these plants use this energy for formation of their food in the process of photosynthesis. अपनी वो सन की एनर्जी यूज करते हैं तभी तो अपना खाना बनाते हैं ना. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट बी सर्वाइव. हम और ले सकते हैं एग्जांपल, व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, दे आर रनिंग ऑन द रोड. हाउ? व्हेन डीजल एंड पेट्रोल प्रोवाइड्स द एनर्जी. अगर उसमें ये डीजल या पेट्रोल ही नहीं होगा तो क्या ये गाड़ियां चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी. तो जो एनर्जी है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए. वी फुलफिल आवर नीड्स बाय ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अवेलेबल इन नेचर. हम अपनी एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग तरह से पूरे कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स. और वो कहाँ से हो सकती है? नेचर से. जैसे प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सन, वी गेटिंग आवर एनर्जी, our body get our energy with the help of food. तो ये अलग अलग मेथड्स हैं. there is a different method by which we can get the energy. sun is the ultimate source of energy. और sun क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है किसका? एनर्जी का. the biggest source of energy is sun. some of the other sources are water, air, coal and पेट्रोलियम. और कुछ दूसरे सोर्सेस की बात करें तो वो कौन कौन से? एयर, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. व्हाट इज द मेन की ऑफ दिस पैराग्राफ? द मेन की इज दैट एनर्जी is very important and essential part of living organism. Without energy, the living organism cannot be survive. And there are the different sources of energy by which we can get energies. It may be a food, sun, water, coal and petroleum and many more. I hope you clear this. Now, sources of energy are of two types. Sources of energy are of two types. कितने तरह के होते हैं? Two types के होते हैं. Renewable और inexhaustible sources of energy. Renewable अभी बताया था हमने, नवीनीकरण, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है. और exhaustible मीन्स होता है नष्ट हो जाना. inexhaustible जो नष्ट होने के बाद भी दोबारा से हम ऑब्टेन कर सकें. नॉन रिन्यूएबल जिसको हम रिन्यू नहीं कर पाते. और एक्सहॉस्टेबल मीन्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना. आई होप यू क्लियर दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट विच इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन कंटिन्यूसली ड्राइव एनर्जी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल और inexhaustible sources of energy. sources of from which यानी कि ऐसे वो सोर्स है जहां से हम कंटिन्यूसली एनर्जी को लेते रहते हैं फॉर ए लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे वक्त तक. बहुत लंबे वक्त से हम लेते आ रहे हैं, उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं. और ऑल्सो वी कैन बी यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर. और हम उसको भविष्य में भी बहुत लंबे वक्त तक यूज कर सकते हैं. मीन्स जिसके चांसेस नहीं है अभी बहुत लंबे वक्त तक खत्म होने के. ऐसे कौन कौन से हैं? सनलाइट, सन एनर्जी, या हम इसको सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं. कितने लंबे वक्त से हम उसको यूज कर रहे हैं और आने वाले बहुत से सालों तक हम उसको यूज करते रहेंगे. तो ऐसे जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल और इनएक्सहॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी मीन्स द सन एनर्जी. विंड एनर्जी जो हवा की एनर्जी है, विंड एनर्जी, ये भी आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल है. एंड एनर्जी फ्रॉम वाटर, जो वाटर से एनर्जी आती है, मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ
renewable or inexhaustible sources of energy, means the sources which we are using for which we are used for a longer time, that is known as renewable sources of energy. The second part is non-renewable sources of energy. That is a just opposite case of the renewable sources of energy. The energy sources which are finite, जो क्या है, finite है, यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी में है, and will get exhausted with continuously use are called, and which are exhaustible, जो नष्ट हो जाएंगे एक वक्त के बाद, if we are using continuously, अगर हम उसको लगातार यूज कर रहे हैं, are called renewable non-renewable sources of energy or exhaustible sources of energy. Let's try to understand with an example. Imagine you have some food, हाँ, आपके पास कुछ खाना है, and there are 5 members in a family. If you are taking continuously, so after a finite time it will be over, ये खत्म हो जाएगा. फिर कैसे होगा? जब खत्म हो गया तो कैन वी यूज अगेन इट? नहीं, क्योंकि अभी वो बना नहीं है और ना ही हम उसको बना सकते हैं. अगर हम उसको बना ही नहीं सकते, इमेजिन करो, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अगेन, सो सच टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम उसको दोबारा से हासिल नहीं कर सकते. सिमिलरली एग्जाम्पल सॉइल, कोल, पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल. अब बात करो कोल. कोल आर इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ, हमारे पास लिमिटेड है and continuously we are using it, so obviously after some time it will be end, कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाएगा. जब हम उसको यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, तो कुछ वक्त के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? डेफिनेटली इट विल बी एंड, एंड देन व्हेन इट एंड वी कांट बी यूज इट बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं है. सेम डीजल और पेट्रोल मीन्स पेट्रोलियम फिक्स क्वांटिटी में है, एंड कंटिन्यूसली पेट्रोलियम आर यूजिंग ओवर द वर्ल्ड. अगर वो डेफिनेट क्वांटिटी में है, फाइनाइट है, एक लिमिटेड है, तो हम जितना उसका यूज करेंगे उतनी ही उसकी जो क्वांटिटी है, जो स्टोरेज है, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा. एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी एंड, और फिर हम उसको दोबारा से इस तरह से हासिल नहीं कर सकते. तो कैसे हो गए वो? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो इन दिस चैप्टर we will discuss about such more interesting facts with fossil fuels, coal, petroleum and many more. I hope you understand this video. So thank you for listening me.